हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। टुडे विल स्टार्ट अ न्यू लेसन ऑफ आवर साइंस पोर्शन. चैप्टर नंबर 7 is of conservation of plants and animals. Conservation means बचा के रखना, to preserve or to protect. So we are going to see why we require to conserve plants and animals. एंड जब बात कंजर्वेशन की आई है, इट मीन्स कुछ उनको खतरा होगा, दे मस्ट बी इन डेंजर. दैट इज वाई वी आर टॉकिंग ऑफ कंजर्विंग देम, राइट? तो वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट ऑल्सो. अब जैसे काफ़ी बार आप बच्चे लोग आप घूमने जाते हो, तो व्हेन यू गो आउट, अब कई बार कोई नेशनल पार्क जाते हो के, आप कोई सेंचुरी जाते होगे, जैसे भरतपुर करके सेंचुरी है इंडिया में, काजीरंगा करके नेशनल पार्क है, लॉकचाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, द ग्रेट निकोबर बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व्स है इन मध्य प्रदेश. जैसे काफ़ी जगह है जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है. और हम इंसान लोग we from time to time हम जाते हैं for tourism purposes and we go and relax in such areas. So purpose क्या है? देखो purpose क्या है. ये national parks और sanctuaries और ये biosphere reserves बनाने का purpose क्या है? Purpose is protection. किसका? Not human beings का. हम main villain है. Protection of the flora means the plants and the fauna means the animals, right? The purpose of all these parks and sanctuary and reserve is to protect the flora and fauna of that particular area. Let us see now first a topic called deforestation. Right? A great variety of plants and animals exist on the earth, and they are very essential for the well-being and survival of mankind also. हम अपने आप को दुनिया का राजा समझते हैं, लेकिन without these plants and animals we cannot survive. But today a very big threat to survival of these plants and animals is deforestation. Deforestation means clearing of forests, cutting down of forests and using that land for other purposes. And बच्चों कौन करेगा ये चीज? कोई और एनिमल नहीं करता है ना, हम भी करते हैं. ह्यूमन बींग्स आर द वर्स्ट एनिमल ऑफ ऑल, वी कैन से. हम बेचारे और एनिमल्स को मार के उनका घर का बर्बादी करके हम उसके घर में घुस जा रहे. हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे जहाँ पे एनिमल और प्लांट रहते हैं, और हम अपने फ़ायदे के लिए, हमारा खेती के लिए, हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे रहने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. So trees in the forest are cut for some purposes below, like mentioned below, like getting land for cultivation. Procuring means getting land for building houses and factories, making furniture or using wood as fuel. Some natural causes of deforestation are forest fire एंड ड्रॉट्स. जब बारिश नहीं होती है तो सब सूख जाएगा और फॉरेस्ट में आग लगता है, तो ये नेचुरल कॉजेज है. लेकिन यू कैन सी ये तो बहुत कम होता है ना, और ये होता है, दैट्स फाइन, ओके. बट दीज ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके, तो डिफॉरेस्टेशन तो हो जाए, राइट? उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट्स. What is the result? What is the impact? क्या असर होता है जब फॉरेस्ट कट जाता है तो? So now Paheli and Bojo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation will increase the temperature and pollution level on the earth. तो फर्स्ट क्या करेगा? अर्थ पे टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल को इंक्रीज करेगा. It will increase the carbon dioxide level in the atmosphere. Groundwater level gets lowered. Deforestation will disturb the balance in nature.
प्लांट्स और एनिमल्स का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करेगा. So Paheli and Boju are telling their teacher, the Professor Ahmed, that if cutting of trees continues, then rainfall and the fertility of soil also will decrease. Dekho, these are all the consequences, the results of deforestation. Right? All of them are bad. You see, they are harmful effects. None of them are good. Now question comes, how does deforestation reduce rainfall? तो सिंपल बात, trees ही बारिश लाते हैं ना. If the trees are there, more water vapor is thrown into atmosphere और उसके कारण atmosphere का climate temperature कम हो जाता है and उसके कारण rainfall bearing clouds will condense and बारिश आएगा. तो forest will bring rainfall और जहाँ forest नहीं होगा तो बारिश नहीं आएगा. It is like this के वो बादल भरा पानी भरा बादल ऊपर से जा रहा है और दिखता है ओ ये नीचे फॉरेस्ट है, वो सोचेगा चलो मेरे ट्रीज और प्लांट्स पौधे को एनिमल्स को मैं पानी दे दूँ और वो बारिश बरसाएगा. एंड अगर ऊपर से वो बादल देखे और बंजर ज़मीन है, वो सोचेगा अरे क्यों मेरा पानी को बिगाड़ूँ, क्यों वेस्ट करूँ, छोड़ो बरसना ही नहीं है, और निकल जाता है. मीन्स समथिंग लाइक दैट. यू कैन सी ट्रीज हो तो बारिश आएगा. सो डिफॉरेस्टेशन से बारिश कम हो जाएगा एंड बारिश कम होगा तो इट रिजल्ट्स इन मोर डिफॉरेस्टेशन. देखो ये पूरा साइकिल कंटिन्यूस. एट द सेम टाइम देयर इज एन इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स. नाउ प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. ट्रीज कम हो गए तो इट मीन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप, resulting in increased level of carbon dioxide in the atmosphere. तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर में तो इट विल रिजल्ट टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग विल occur as carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. Right? CO2 क्या करेगा, अर्थ जो हीट रेज को वापस फेंकता है स्पेस में, CO2 का लेवल उसको पकड़ लगता है, तो CO2 कैचेस द हीट और अर्थ गर्म हो जाता है. एंड इसी कारण क्या होगा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल, इट मे रिड्यूस रेनफॉल, इट विल कॉज ड्रॉट्स ऑल्सो, इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन हैवी रेनफॉल इन सम एरियाज, मोर स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ऑल नेचुरल कैलेमिटीज ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते हैं. ओके, डिफॉरेस्टेशन is a major cause which leads to the change in the soil properties also. The physical property of soil gets affected by plantation and vegetation. Plants और vegetable होगा, vegetables, तो soil की quality अच्छी हो जाती है, right? लेकिन अगर vegetation कम होगा तो soil dry हो जाएगा, soil की का organic matter कम हो जाएगा, soil की quality भी बिगड़ जाएंगी. Trees prevent soil erosion. अगर ट्रीज कम होगा तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, राइट? और द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव्ड, लोअर हार्ड रॉकी लेयर ऑफ सॉइल विल रिमेन. दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस, इट इज लेस फर्टाइल. द ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स. दिस इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन. तो फर्टाइल लैंड कम हो जाएगा एंड अल्टीमेटली डेजर्ट बन जाएगा, बंजर बन जाएगा. Deforestation also leads to the decrease in the water holding capacity of the soil. Soil में अगर plant और animal का remains होगा, humus होगा, organic matter होगा, तो वो पानी को पकड़ के रखेगा. They have more water holding capacity. लेकिन अगर वो नहीं होगा, soil dry होगा, तो वो पानी को नहीं पकड़ पाएगा. Right? And so what happens now? Water is not held in the soil. And water will not go down into the groundwater level. Water ऊपर से flow हो जाएगा. So the movement of water from the soil surface into the ground is reduced. Groundwater level कम हो जाएगा because infiltration rate कम हो जाएगा. पानी का अंदर जाना कम हो जाएगा. So flooding होगा. Right? The soil nutrient content, texture, etc. also will change because of deforestation. We will also face a shortage of many products which are obtained from the forest if we continue cutting trees.
एट द सेम टाइम एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन. बेचार उनका घर ही हम काट डालेंगे, राइट? तो उनका दे ऑल्सो आर किल्ड, दे ऑल्सो हैव नो होम टू स्टे, दे वोंट गेट फूड टू ईट. तो आप देखो कितना खराब असर हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन के. वी सॉ ऑल द बैड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ओके, आप वापस ये वीडियो देख लेना, टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, आपको पूरा ये आंसर आपको समझना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. चलो अब आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. वो एक नया टॉपिक है, तो लेट्स कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. तो सी यू देन, बाय.